सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, लबनान के दारुल हुकूमत बैरून में हंगामी सूरत हाल का नफाज हो गया है। स्पीकर पार्लियामेंट ने 8 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। लबनान दारुल हुकूमत बैरूत में धमाके को आज 9 दिन गुजर गए हैं। बैरूत में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे और उसके बाद धमाके के बाद अवाम में शदीद रंजो गम पाया जाता है। अवाम के गज़ो गज़ब में इजाफा होने के बाद ही ये सारा मामला और सूरत हाल पैदा हुई है। 10 अगस्त को लबनान के वज़ीर आज़म हसन दियाब ने हुकूमत समेत मुस्ताफी होने का ऐलान किया था और अब ये पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफे दिए जा रहे हैं जो कि स्पीकर ने मंजूर किए हैं। माशी बहरान और सियासी कशीदगी में घिरा लबनान 1975 से 1990 तक जारी खाना जंगी के बाद लबनान में आने वाला ये बदतरीन माशी बहरान है। बैरूत धमाकों से मुतालिक जो है वो सोशल मीडिया पर साजिशी नज़रियात कैसे फैले और ये बैरूत में जो 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट कैसे आया, कब इन लोगों को कटहरे में लाएंगे जो इस वाक़े के जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात लेने के लिए आज मेरे साथ सबसे पहले भी मौजूद होंगी जी राइमा अल हुसैनी है। आप सहाफ़ी हैं, बड़ी वहाँ की मजबूत और मशहूर लबनान से अनाहर न्यूज़पेपर में आप काम करती हैं। मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच राइमा अल हुसैनी फॉर ज्वाइनिंग अस। राइम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माई प्रोग्राम। I welcome you. I'm sorry? Thank you so very much for joining me in my show. I welcome you. Thank you for having me. Raim, I just wanted to know first of all that as we know the updates now today that there are 8 parliamentary members who have given their resignation to the speaker in the parliament today. What is the reason behind it actually? I can say I personally think that they are all resigning because the people are requesting their resignation because the people are holding them responsible for the explosion that happened. And I think that people are going to be always on the streets up until everyone resigns, up until the whole sectarian elite resigns, and there would not be anymore any of the old political ruling elite class, you know? Yes. Okay, as we know that on 10th August, the Prime Minister Hassan Diab has announced it that they are going to given the resigns from the government, including his whole team. So now, what is the major consequences as the people are giving so much pressure? You are already saying it that there is an agitation. There is a situation which has not been so far fine. We are watching after this a blast which has been happened so far 9 days back. Raim, can you hear me? Yes, Raim, can you hear us? Yes. Yes, I can hear you. So you were talking about Hassan Diab's resignation. Yeah, exactly. Which he has been announced so far 9 days back. Sorry, 4 days back. Yes. Yes, he did resignate, but the problem is that we didn't see any action from the government up until a little too late, you know, because the people think that the government already knew that there was ammonium nitrate in the Beirut port. So the action that the government is taking actually, even if it's now, people think that it's already too late. I mean, the Lebanese parliament has marched earlier today for the first time since the tragic explosion. So everyone is expecting more protests on the streets.
Recently, the parliament actually approved a state of emergency in Beirut, which grants the military powers to somehow control the capital, including declaring curfews, preventing public gatherings, and censoring media as well. And they're doing all of this because they believe that the protests will not stop and the people will not get out of the streets, because they want the whole ruling elite class to All right. just go away and be held accountable for what they did. Okay, Raim, please explain me more this about that. We have seen it that there is not a good situation of economy as well in Lebanon, and people are much annoyed due to this situation as well on the government. So how far do you see that this would come into this result? And are these resignations which has been submitted today in the parliament is the result of this anger of the people of the Lebanon? Yes, of course, because the Lebanese economy does not go, does not witness, does not go. No, the Lebanese economy has always been for a while now. I don't know, downgrading, if I can say. And when the October 17 or the October Revolution, as it's called, happened, the lira just or the Lebanese currency against the dollar just kept going down. And we can see that people at this moment, they cannot even afford to buy food. And the Beirut explosion actually left a lot of people homeless, left a lot of people without being able to again, buy food. So the basic rights of the Lebanese people are threatened and have been threatened for a while. And this is why we have reached a moment in this stage where we cannot stay quiet any longer, because it's not only the economy, it's people dying, people losing their houses, people going homeless. As much as you can see in the media, the pictures and the videos of the shattered buildings and the glasses everywhere, it is not the same that when you see it with your own bare eyes, honestly. It's so much worse. And Beirut is completely destroyed. It's a wreckage, and there's no one to actually be held accountable for this, and this is why people are raging. Okay, thank you so very much, Raiman Hussaini. नफ़ी हमारे साथ मौजूद थी. Thank you so very much for giving your precious time. इसी के साथ जी नाज़रीन ये सेगमेंट जो है इख्तिताम को करते हैं, पहुंचता है अपने, लेकिन आगे बढ़ती हूँ और आगे बढ़ूंगी तो पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं जी. पेशावर BRT मेगा प्रोजेक्ट 2 साल 10 महीने बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह कर दिया. लेकिन जो सबसे आज की अहम बड़ी ख़बर है वो ये है कि मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हम गलत थे. परवेज़ खटक पर मैंने गलत जो है वो डाउट किया, ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा. माजी में BRT पर तनकीद का वज़ीर आज़म को गलती का एहसास हो गया है. आज वज़ीर आज़म ने एतराफ़ किया कि BRT जैसा मेगा प्रोजेक्ट इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. अक्टूबर 2017 को पेशावर BRT का संगे बुनियाद रखा गया था. 8 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से डेड लाइन्स दी गई. मंसूबे के डिज़ाइन के नकाइस के बाइस इसमें 2 दर्जन से ज़ायद मरतबा तब्दीलियां लाई गई. 69 अरब रुपए से शुरू होने वाला मंसूबा 71 अरब रुपए से तजावुज कर गया. तकरीबन 3 साल के इंतजार के बाद अब जाकर इस मेगा प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह हुआ है. आखिर तारीख पे तारीख क्यों दी गई थी, वजह क्या थी और माजरा क्या, और क्या वाकई BRT मंसूबा जो है पूरा मुकम्मल हो चुका है और क्या अपने डेडलाइन से पहले मुकम्मल हुआ है जो कि आज हुकूमत क्लेम करी थी. वो सारे सवाल हैं जिनके जवाब लेने की कोशिश करूंगी. दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में कराची को लेकर शदीद इस्तराब पाया जाता है. चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी को लेकर एक मरतबा फिर सरजनिश की है. सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर 3 चीफ जस्टिस जो है पाकिस्तान के वो सवाल उठा चुके हैं. इससे पहले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी सिंध हुकूमत की फेलियर और गुड और बैड गवर्नेंस के हवाले से बात की थी. उससे पहले साकिब निसार साहब ने भी सिंध हुकूमत की सख्त सरजनिश की थी. चीफ जस्टिस ने कराची में लोड शेडिंग के बारे में भी एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक की भी इंतजामिया की सरजनिश की है.
और साथ ही साथ कहा है कि आधे कराची में बिजली नहीं होती, ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले। परसों इनको कहा तो आधे कराची में कल बिजली बंद कर दी। इनका दिमाग ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हुई हैं। और अभी अभी ये अपडेट्स आ रही हैं जी कि तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया। तजावुजात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये इस वक्त की अपडेट्स भी आ रही हैं। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज ये भी कह डाला कि कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। और फ़रोग नसीम और गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत पूछी है कि अटॉर्नी जनरल आके पार्लियामेंट में ये जवाब दे कि कराची को हासिल करने के लिए वफाक के पास क्या आईनी कानूनी राइट्स हैं, उसको एक्सप्लेन करें। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले बैठे सोराब खान सरकी साहब, आप एमपी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं यासीन आज़ाद साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर कानूनदान है, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ यासीन आज़ाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सोराब खान सरकी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइए, चीफ जस्टिस के हवाले से पहले बात कर लेती हूँ, फिर मैं बीआरटी पे भी जाती हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर सरजनिश की है सिंध हुकूमत की। और मैंने इब्तिदा में जैसे कि कहा 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब हो गए जो लगातार सिंध हुकूमत की बैड गवर्नेंस के हवाले से सवाल उठा रहे हैं। ये क्या माजरा है, क्यों जो है अब तक, और आपको तो जाहिर सी बात है आप 93 से है पॉलिटिक्स में और पार्लियामेंटेरियन बनते आ रहे हैं, क्यों नहीं मामला हल कर पा रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन देती रहती है। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ की ऑब्जर्वेशन, आपको पता है कि एनडीएमए के खिलाफ की दवाइयाँ वगैरह उन्होंने ख़रीदी कर इधर आकर फिर उन्होंने एनडीएमए को ज़्यादा यहाँ पर वो कहा कि स्ट्रेंथन वो बात करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, वो जो महसूस करते हैं अच्छी बात है, वो कोर्ट के अंदर इस तरह की बातें करते हैं। उनका खुदा न खास्ता ये मकसद नहीं होता है कि आप ये कह दें कि गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई, क्योंकि या गवर्नमेंट जो जिस तरह परसेप्शन बनता है यहाँ पर बनाया हुआ परसेप्शन, यहाँ पर लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा भी होता है, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस तरह की पेश की जाती है। और दूसरा ये है कि बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तान बनाने में सिंध का बहुत बड़ा किरदार था। उसमें आपको पता है कि हमारे आबो अजदाद, खुद मेरे दादा सोराब नाम था उनका, मेंबर थे, उन्होंने रेजोल्यूशन जो असेंबली में पास हुआ वो भी सिंध असेंबली में हुआ। और बड़े जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया कायद मोहम्मद अली जनाब, उनका ताल्लुक भी खुशकिस्मती से हमारे लिए फ़ख्र की बात है, उनका ताल्लुक भी सिंध से था। और उसके बाद जब पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो यहाँ पर पूरी जो पाकिस्तान जो है ये वेस्ट पाकिस्तान हवाले किया गया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के। और आपने ये देखा कि उन्होंने किस तरह इस पाकिस्तान को आगे मजबूती से आगे बढ़ाया। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि यहाँ पर जो सिंध में जो हुकूमत रही है या यहाँ पर जो रही, हमेशा जो जिनको मैंडेट मिला यहाँ पर वो इत्तेफाक से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा मैंडेट मिला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया है। और हमेशा जब भी कोई इलेक्शन हुई है, 70 से लेकर आज़ाद साहब बैठे हैं, ये सीनियर हैं, 70 से के बाद सिंगल लार्जर पार्टी जब भी पूरे दुनिया के अंदर जो निज़ाम राइज है उसके तहत सबसे पहले जो बड़ी पार्टी होती है मुल्क के अंदर या किसी सूबे के अंदर उसको दावत दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से कभी बहुत मरतबा इंटरवीन करके और लोगों को ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के लोटा बना के यहाँ पर हुकूमत नहीं करने दी गई। एक यहाँ पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि ख़ास तौर पर सिंध के अंदर जो रही है और हमेशा जो यहाँ पर नहीं जीते हैं और हारते रहते हैं और उनकी ये हमेशा ख्वाहिश रही है कि कराची के हवाले से हमेशा प्रेशर बिल्डअप करने के हवाले से ऐसे कानून, ये जो आप 149 की बात कर रही हैं, ये आज़ाद साहब बैठे हैं, मेरे से ज़्यादा कानून के माहिर हैं, ख़ुद मैंने रेजोल्यूशन पेश किया था इसके ख़िलाफ़, सिंध असेंबली इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन पास कर चुकी है कि इस तरह के कोई इख्तियारात नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को कोई भी टेरिटरी अपने कब्ज़े में ले ले। वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी है, इस तरह की डायरेक्शन दे सकते हैं कि वहाँ पर कमी पेशी है। और जब ये पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि हमारा ये कमाल है कि हम दूसरी मरतबा वहाँ पर जीत के आए, पहले वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में एक पार्टी होती थी, दूसरी मरतबा दूसरी पार्टी होती थी, जब उनका कमाल है दूसरी मरतबा, हमारे से इनको तकलीफ़ है कि तीसरी मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से क्यों जीती है।
और यही इनको बड़ी तकलीफ है। 12-13 साल गिनाते रहते हैं। और आपको पता है कि कराची के हवाले से हम भी ये कहते हैं कि 90% जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन है या पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, कराची शहर करता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची की जो आबादी, उससे ज़्यादा आबादी पूरे पाकिस्तान से लोग आकर यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, आपकी सारी बात मेरी पूरी बात सुन ले मेरी। और पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं। आप दूसरे जाएं, लाहौर में जाएं या पेशावर में चले जाएं, कोटा में चले जाएं, यहाँ सिंध का कोई आदमी आपको वहाँ पर रोजगार के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर डबल आबादी है और हम उसको अब वेलकम कहते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे लिए फख्र की बात है। अच्छा। लेकिन उसको लेकर आप क्रिटिसाइज करें और कहें कि हम 149 लगा देंगे, ये लगा देंगे और इंतजाम सही नहीं, इसलिए पैसे भी तो दें। चले, मैं इस पर से सवाल नेक्स्ट सेगमेंट में करती हूँ। मूविंग टुवर्ड्स यासीन साहब। यासीन साहब, आईनी और कानूनी क्या हैसियत है, मुझे बता दें। अटॉर्नी जनरल साहब ने चूंकि एक शोशा छोड़ दिया है अब कल से, तो अब मुझे बताएं कि जी इस शोशे के बाद जो अब नई बहस छिड़ गई है और आज पीपल्स पार्टी पूछ रही है कि जी बता दीजिए कि आईनी और कानूनी हैसियत क्या है इस सारी सूरत हाल की। लेकिन